हेलो गाइस, और टुडेज टॉपिक इज़ गैस लॉ। बच्चों, इस चैप्टर में भी हम लोग नंबर ऑफ़ गैस लॉज पढ़ेंगे, जैसे हम वी डिड इन द फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इवन गेलुसिस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ पढ़े थे। सेम लॉ, गेलुसिस लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक दैट लॉ ऑल्सो सीन इन फर्स्ट चैप्टर। सो ये मोर और लेस सिमिलर चैप्टर है। ओके, चलते हैं फिर पहले लॉ की तरफ आज का, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। Now Boyle's law actually gives the relationship between the pressure and volume of the gas. Okay, this law is related with what? The pressure of the gas and the volume of the gas. Or you can also say that Boyle's law is also related with the pressure and concentration of the solution. Or you can say volume and concentration of the solution. Okay, तो देखते हैं क्या है Boyle's law, उसका statement and then after its mathematical expression. Okay, see the law states that for a fixed mass of a gas, fixed mass of a gas यानी definitely number of moles होंगे, 1 mole of a gas, 2 moles of a gas, 3 moles of a gas, correct? So the law states that for a fixed mass, that is number of moles is represented by n of a gas at constant temperature and pressure. At constant temperature, the pressure P of a gas is inversely proportional to the volume V of a gas. Understood? The pressure P is inversely proportional to volume V of the gas. I repeat the statement again. The law states that for a fixed mass, in bracket number of moles, that is n, bracket complete, of a gas at constant temperature. Okay, for a fixed mass of a gas at constant temperature, pressure of the gas is inversely proportional to its volume. प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. अंडरस्टूड? इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. अंडरस्टूड? तो P क्या लिखेंगे? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज P 1/V. इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा. देयर इज वी आर हैविंग ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ ऑल्सो. ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है इस लॉ के लिए. लेट्स सी दैट. देखो, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस varies inversely with the volume. At constant temperature, the pressure of fixed amount, that is number of moles, fixed amount होगा 1, 2, 3, 4, 5, whatever it may be, of a gas varies inversely with the volume. Okay, यानी जब अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी डिक्रीज. अंडरस्टूड? जब आप प्रेशर कम कर दोगे द वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस. अंडरस्टूड? सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस, the volume will be decreased. If you decrease the pressure of the gas, the volume will be increased. So it is inversely proportional. Pressure is inversely proportional to the volume. Okay, अब with the help of a statement only we'll go for the mathematical expression. हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अंडरस्टूड? सी बच्चों, आप पहला वाला स्टेटमेंट या फिर दूसरा स्टेटमेंट, इन द टेक्स्ट बुक बोथ द स्टेटमेंट्स आर गिवन. आप कोई भी स्टेटमेंट के लिए जा सकते हो. यू कैन प्रिपेयर एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द टू स्टेटमेंट बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्चुअली. अंडरस्टूड? इसका एक ऑल्टरनेटिव, वन मोर ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट इज ऑल्सो देयर. दिस प्रेशर is directly proportional to concentration. Okay, but concentration ये word generally आता है for the solution only and that's why it is not given over here. क्योंकि हम लोग gas laws पढ़ रहे हैं, so you know gas laws का instead of concentration pressure ये एक term identical है. Okay, so that's why pressure inversely proportional to volume. आगे बढ़ते हैं फिर mathematical expression के लिए. So mathematically the Boyle's law is expressed as the statement is given P inversely proportional to volume. P inversely proportional to volume. So P inversely proportional to 1/V at constant temperature and the number of moles are also constant. उसको किस तरह से लिखेंगे? Therefore P is equal to K1 into 1/V. P is equal to K1 into 1/V. Understood? Where K1 क्या होंगे? K1 होगा constant and that constant is known as proportionality constant. Understood? K1 is what? It is a constant and that is said to be the proportionality constant. Okay, so that is equation number 2 मिल गया हमें. P is equal to K1 into 1/V. You can write directly P is equal to K1/V. आप ऐसा भी ले सकते हो, P is equal to K1/V. K1 into 1/V P लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली K1/V लिखेंगे तो भी चलेगा.
ओके, ये अपना इक्वेशन 2 हो गया, जहाँ पे K1 रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो इक्वेशन 2 को, तो मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर 3, दैट इज़ PV इज इक्वल टू K1। अंडरस्टूड, PV इज इक्वल टू K1। ठीक है, सो देखते हैं अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट, प्रेशर ऑफ अ फिक्स amount of a gas vary inversely with the volume na, so P inversely proportional to volume, that is our equation number 1. So P is equal to K1 into 1 upon V, understood, or P is equal to K1 into V, where K1 is the proportionality constant. So here finally we got the equation PV is equal to K1, understood. V को P के साइड पे ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so you will be getting PV is equal to K1, that is equation number 3. अब इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, this PV is equal to K1 means at constant temperature, the product of pressure and volume of the fixed amount of a gas is constant. Okay, PV is equal to K1, the equation number 3 representing that at constant temperature the product of pressure and volume, understood, कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी, कुछ वॉल्यूम की वैल्यू होगी, दिस वन ऑफ अ गैस। सो उन दोनों का वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, सो वो जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दी कांस्टेंट, अंडरस्टूड। सो द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस is always remains constant, understood, because K is the constant, no. So the product the value of the product of pressure and volume is equal to constant only. So this is all about the equation number 3 and its statement. ठीक है बच्चों, सो इजी लॉ है, लॉ पहले याद रखना है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, थर्मोडायनामिक पैरामीटर कौन सा कांस्टेंट यहाँ पे है, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू volume, and that's why mathematical expression P inversely proportional to V, therefore P is equal to K1 into 1 by V or K1 by V, that's why PV is equal to K1, understood। ये तो हो गया mathematical expression हमारे पास। okay, consider करो we are having a gas in a chamber, एक गैस है हमारे पास, वो गैस चेम्बर में रखा हुआ है। ओके, एक गैस चैम्बर में है, समझ लो एक बॉटल जैसा अपने पास एक गैस चैम्बर है, गैस कंटेनर है जिसमें गैस मैंने रखा है। ओके, अब व्हेन एंड उसका वॉल्यूम भी फिक्स, दिस वन वॉल्यूम भी फिक्स होगा, टेम्परेचर भी वहाँ पे कांस्टेंट होगा, बट ऑब्वियस ओके प्रेशर होगा कुछ, एंड डेफिनेटली मास तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते उसके लिए अगर उसको वॉल्यूम चेंज हो गया तो फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चेंज इन द इक्वेशन विल टेक्स प्लेस, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, अगर फिक्स वॉल्यूम है एक पर्टिकुलर गैस का चैम्बर में रखा और उसका समहाउ वॉल्यूम चेंज हो गया, अंडरस्टूड, तो फिर वो किस तरह से इक्वेशन लिखा जाएगा, दैट ऑल्सो वी सी ओवर हियर, क्योंकि वही इक्वेशन हम लोग न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करेंगे, अंडरस्टूड। चलते हैं फिर आगे। व्हेन अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1 इनिशियली एट प्रेशर P1 अंडरगो एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन। देखो, अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर हैविंग इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर P1, ओके, स्टार्टिंग का प्रेशर P1 है कंसिडर करो एंड वॉल्यूम उसका V1, वो पर्टिकुलर गैस समझ लो कि एक्सपांशन हुआ या फिर उसको कॉम्प्रेशन हुआ। जस्ट विजुअलाइज द फैक्टर, एक बड़ा सिलेंडर है, सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन भी है साथ में, ओके, एक गैस सिलेंडर है हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, अंडरस्टूड। अब वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, अगर पिस्टन से हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस कॉम्प्रेस होगा, ओके, अगर गैसेस प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउटर प्रेशर जो है, आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है कंपेयर टू द गैस के प्रेशर से, तो फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ तो हम लोग कहेंगे एक्सपांशन ऑफ अ गैस, गैस एक्सपांड हुआ। एंड अगर पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर अप्लाई करने से पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम चला गया या फिर हम लेके आए, देन हम लोग कहेंगे कि गैस इज कॉम्प्रेस्ड, अंडरस्टूड। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, इट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस एज वेल एज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर, अंडरस्टूड। तो एक सिलेंडर है अपने पास, सिलेंडर में पिस्टन भी है, ठीक है। अब पिस्टन में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है बिकॉज ऑफ द पिस्टन कि गैस एक तो एक्सपांड होगा या फिर गैस कॉम्प्रेस होगा, अब कोई भी एक पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर कर लो, बट इनिशियल वॉल्यूम तो यहाँ पे है फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस V1 एंड इनिशियल प्रेशर इज़ P1, अंडरस्टूड। अब अगर समझ लो कि वो पिस्टन हमने फोर्सफुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके गए,
गैस कॉम्प्रेस हो गया, गैस कॉम्प्रेस भी हुआ तो क्या हो गया, वहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया। अंडरस्टूड? गैस कॉम्प्रेस हुआ तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज एंड दैट द वॉल्यूम विल बी कंसिडर एज V2। अंडरस्टूड? एंड डेफिनेटली प्रेशर भी हमने अप्लाई किया है वहाँ पे, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P2। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, एक गैस है जो कि इनक्लोज किया है इन द सिलेंडर, इनिशियल वॉल्यूम उसका V1, इनिशियल प्रेशर P1। अगर पिस्टन को हम लोग प्रेस करेंगे, जैसे आप से यू नो जो साइकिल में हवा भरते हो पंप, ओके, इट इज़ लाइक दैट ओनली, सेम वही समझ लो आप कि एक बड़ी सी सिलेंडर है, राउंड पाइप, और जिसमें एक अंदर से पिस्टन है, पिस्टन से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो वो साइकिल के पंप से हवा निकल रही है, लाइक दैट। वही विजुअलाइज कर लो कि उस तरह का है, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग ब्लॉक करेंगे, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो गैस निकल ना जाए। तो क्या होगा, इनिशियल जो वॉल्यूम होगा उससे तो डेफिनेटली वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर भी इनिशियल है, उससे प्रेशर डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे इन दैट पर्टिकुलर केस। अंडरस्टूड ना? सो इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल प्रेशर P1, और उस गैस को कॉम्प्रेस कर लिया, तो फिर वो वॉल्यूम चेंज हो गया बाई V2, वॉल्यूम कम हो जाएगा कंपेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम, एंड प्रेशर भी चेंज हो जाएगा P2, प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ। अंडरस्टूड? वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। वॉल्यूम कम हुआ इसीलिए, किस लिए कम हुआ, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ओवर देयर। अंडरस्टूड? दैट्स वाई दैट वॉल्यूम इज, और यू कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो चेंज तो हुआ, क्या वॉल्यूम एंड प्रेशर में चेंजेस तो आ गए। अंडरस्टूड? इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल वॉल्यूम V2, फाइनल प्रेशर P2। अब वहाँ पे जब चेंज इन द वॉल्यूम एंड प्रेशर अगर होगा फॉर अ पर्टिकुलर गैस, तो फिर वो इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? सो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू P2 V2, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अंडरस्टूड? P1 V1 is equal to P2 V2, which is equal to constant. This is our equation number 4. Understood? And this particular equation P1 V1 is equal to P2 V2, ये हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली, ये हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। अंडरस्टूड? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर द बॉयल्स लॉ। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला, P1 V1 is equal to P2 V2. Understood? So this is all about the whole Boyles law along with its mathematical expression. अब चलता है फॉर द Boyles law in terms of density of a gas. Boyles law in terms of a density of a gas. In previous video we seen the density, डेंसनेस कम होता है गैस पार्टिकल्स का कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड, और जैसे ही हम लोग गैस को क्लोजर लेके आएंगे, गैस पार्टिकल्स को क्लोजर लेके आएंगे, अंडरस्टूड, बाई बट ऑब्वियस बाय अप्लाइंग प्रेशर ओनली, तो क्या होगा, वहाँ पे डेंसनेस बढ़ेगा, डेंसिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, द गैस may turns into the liquid or may turns into the solid as well if we increase the pressure continuously. Okay, चलते हैं फिर, let's see what is the relationship between Boyle's law and the density. With increase in pressure, the gas molecule get closer and the density of the gas increases. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा था, कि अगर आप इंक्रीज करो प्रेशर को तो क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। अंडरस्टूड ना? पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, एंड एज द पार्टिकल्स कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो बट ऑब्वियस पार्टिकल्स क्लोज क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, प्रेशर ये कर रहा है, तो गैप हम लोग कम कर रहे हैं बिटवीन द गैसेस पार्टिकल, गैप कम कर रहे हैं, मतलब ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है वहाँ पे। अंडरस्टूड? as the intermolecular force of attraction is increases, so that particle do not remain in the gaseous phase or may turns into the liquid or may turns into the solid phase as well. So with increase the pressure, the gas particles get closer and the density of the gas increases, क्योंकि but obvious compared to the gas, density of liquid and the solid will be higher. liquid की कम रहती है, liquid की थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्चुअली, एंड सॉलिड की तो डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। अंडरस्टूड? Hence at constant temperature the pressure is directly proportional to density of a fixed mass of a gas. इसलिए फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि at constant temperature the pressure is directly proportional to the density of the gas. यानी जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे हम लोग पर्टिकुलर गैस का, ओके, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। अगर प्रेशर कम करेंगे तो डेंसिटी भी कम होगी गैस की। अंडरस्टूड ना? द डेंसनेस ऑफ द सब्सटेंस विल बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, और द डेंसनेस ऑफ दैट गैस पार्टिकल्स विल बी डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ओवर देयर। अंडरस्टूड? तो विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली विल टेक द रेफरेंस ऑफ दैट इक्वेशन PV इज इक्वल टू K1, जो हमने लास्ट में इक्वेशन यहाँ पे द इक्वेशन नंबर 3 PV इज इक्वल टू K1, उसी का रेफरेंस लेंगे to see the relationship between the Boyle's law and the density. So PV is equal to K1. So volume
हियर देयरफॉर वॉल्यूम V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K1/P, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2 ओवर हियर। ओके, अब डेंसिटी क्या है, if you seen the last video, the density is the mass per volume na, it is the ratio of mass to the volume of the system, volume of the gas. So D is equal to m/V, where D is the density, m क्या है mass and V is the volume. Understood? See equation number 2 में V है अपने पास, okay, V is equal to K1/P, and we required the value of V over here in the equation number 3, because equation number 3 is D is equal to m/V. So V की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2. So here on substituting V from equation 2 to equation 3, what we got, D is equal to m/K1 bracket complete into P. Understood? So because V is equal to K1/P, so here D is equal to m/K1 into P हो जाएगा. Understood? So here D is equal to K dash P. This is equation number 4. Okay, अब ये K dash जो है that is our new constant, because m/K1 is gives the new constant K dash. So D is equal to K dash into P. This is our equation number 4 where K dash is new constant. So इसके basis पे हम लोग लिख सकते हैं कि D is directly proportional to P. Understood? The above equation shows that at constant temperature the pressure is directly proportional to density of the gas. Understood? The pressure is directly proportional to density of the gas. समझ रहा है? Okay, again I'll repeat the things. See here, we'll see the relationship between density and the Boyles law over here. With increase of pressure, gas come closer, and that's why density will be increased. So here the density is definitely directly proportional to the fixed mass of a gas. वो कैसे होगा, हम रेफरेंस ले रहे हैं PV is equal to K इक्वेशन का, therefore V is equal to K1/V, density is equal to m/V. तो V की वैल्यू पुट करेंगे in that density equation. So here we got the equation D is equal to m/K1 into P. That m/K1 that representing the constant which is new constant K dash. So D is equal to K dash into P. So directly we can write D directly proportional to P. यानी density of any substance is directly proportional, or of any gas is directly proportional to the pressure of the gas. Understood? So this is all about the Boyles law. बच्चों रीड कर लेना Boyles law, कल न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे.